ਵਰਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਚਿੱਠੀ ਆਈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਜ ਖੋਲਾਂ ਤੂੰ ਦੱਸ, ਡਰਨਾ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਬੱਸ। 3 ਵਾਰੀ ਚੀਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਰ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਓ। ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰੂਫ ਨਾਲ ਦੱਸ ਨਾ ਸਕਿਆ ਕਿ ਕਿੱਡੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 2 ਨੰਬਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਫਲੋਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਗੱਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਖੁੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਸੁਣੋ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ, ਸਿਰਫ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਬਲਦਿਆਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਜਾਂ ਇਹ ਹਲਫ ਦੇਣ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ ਜਾਂ ਸਰ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਸਰ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਸੁਥਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜੋ 2 ਨੰਬਰੀ ਸਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਝਾੜੂ ਫੜ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ? मैं इसके ऊपर मुझे ये मेरे लिए बड़ी बात है, शर्म की बात है, शर्मिंदगी की बात है। जिस करप्शन की आप बात कर रहे हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की कर रहे हैं, सुथरे पंजाब कर रहे हैं, मैं आपको बावसूब तरीके से बताता हूँ। मैं अगर वो करप्शन हुई तो मिनिस्टर साहब उनको बिल्कुल उनको जो भी सजा बनती होगी कानून के मुताबिक वो देने के हक। डॉक्टर साहब मैं आपकी बात को ऑन कर रहा हूँ, जिस तरह आप फरमा रहे हैं इसी तरह होगा। एक केस FWMC के हवाले से बड़ा हाईलाइट यार, आप तैयारी करके आए ना, ले आए सारे केस ले। सर मैं तैयारी मेरी बात सिर्फ FWO नहीं, सारे ले आए। सुथरा पंजाब का ये जो फैसलाबाद वाला केस है हमने खुद पकड़ा है का, तो ये मान रहे हैं कि 1 अरब से ज़्यादा है। और दूसरा जनाब ये मीडिया की रिपोर्ट है कि बहावलपुर में 10 करोड़ 80 लाख रुपए की ओवर पेमेंटिंग हुई है सुथरा पंजाब में। आगे चले, साहिवाल के अंदर 41 करोड़ की ओवर पेमेंटें हुई हैं। सर ये सारी मीडिया की रिपोर्ट है सुथरा पंजाब में। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਰਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਚਿੱਠੀ ਆਈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਜ ਖੋਲਾਂ ਤੂੰ ਦੱਸ, ਡਰਨਾ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਬੱਸ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਸਰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਸੁਣੋ, ਪੁਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਰਿਆਦ ਦੱਸਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦਵਾਈ ਕਾਰ ਦਾ ਦੱਸੋ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ 3 ਵਾਰੀ ਚੀਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਰ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਓ। ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ 15-20 ਸਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰੂਫ ਨਾਲ ਦੱਸ ਨਾ ਸਕਿਆ ਕਿ ਕਿੱਡੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 2 ਨੰਬਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਫਲੋਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਗੱਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਖੁੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਸੁਣੋ ਸਰ, ਉਧਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਰ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੈਰ ਨਹੀਂ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ तो अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਚਾਹੀਆਂ ਸੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜੈਨੂਇਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਰ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਣੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਣੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਲ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਸਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਔਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਨਾਬ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬਗੈਰ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਡੀਸੀਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ, ਸਿਰਫ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਬਲਦਿਆਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਜਾਂ ਇਹ ਹਲਫ ਦੇਣ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ ਜਾਂ ਸਰ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਸਰ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਜਿੰਨੀ ਹਨੇਰ ਨਗਰੀ ਹੈ, ਸੁਥਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜੋ 2 ਨੰਬਰੀ ਸਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਨਾ। ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਹਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਝਾੜੂ ਫੜ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਗਲੀ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਸਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ? अच्छा इसमें इसका हल है ना, अब हम इसको कंक्लूड करते हैं। इसको डॉक्टर साहब इसको मैं इसके ऊपर मुझे कमेटी बनाई थी सर। अच्छा मैं उसका जवाब दूंगा। खालिद साहब जो डॉक्टर साहब ने तरीके तवायकार दी थी यहाँ पे पड़ी थी, उसका जवाब आया कभी? उसको मंगवाएं, उसको मुझे दें आप। उसको ये अच्छी बात नहीं है ना, अच्छी रवायत नहीं है ना कि एक ऑनरेबल मेंबर अगर 6 महीने पहले तरीके तवायकार दे और उसको कोई जवाब ना है। ये मेरे लिए बड़ी बात है, शर्म की बात है, शर्मिंदगी की बात है। डॉक्टर साहब मेरी बात सुने, ये जो बात अब आपने अब एक ब्रिगेडियर साहब एक सेकंड, जो बात आपने की है यहाँ पर फ्लोर ऑफ द हाउस, जिस करप्शन की आप बात कर रहे हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की कर रहे हैं, सुथरे पंजाब कर रहे हैं, मैं आपको बावसूब तरीके से बताता हूँ, मैं आपको बावसूब जराए से कि आप वो फैक्ट्स लेकर आएँ, आप बैठें, मैं मिनिस्टर साहब के साथ आपकी सिटिंग करूँगा। अगर वो करप्शन हुई तो मिनिस्टर साहब उनको बिल्कुल उनको जो भी सजा बनती होगी कानून के मुताबिक वो देने के हक। अगर नहीं करेंगे तो हम इधर हाउस में बात करेंगे।
आप प्रूफ लें। मैंने कहा टेस्ट केस मैं के डॉक्टर साहब आपकी सर, बात मेरी को ऑन पूरी कर होने रहा तो दें। हूँ। डॉक्टर साहब मैं आपकी बात को ऑन कर रहा हूँ। मैं जिस तरह आप गुजारिश- फरमा रहे हैं इसी तरह होगा। आप प्लीज रिटर्न या किसी भी सर फॉर्म मैं में आप वही proof बात ले आएं। जी ठीक है, मेरी उसको- बात तो सुन लें सर। जी एक केस FWMC के हवाले से बड़ा हाईलाइट यार हुआ आप तैयारी करके आए ना, ले आए सारे केस ले सर आए। मैं तैयारी, मेरी आप बात सिर्फ तो FWO नहीं सारे ले आए। चले सर मेरी बात सुन लें जी इससे पहले आपने जो बड़ी जिम्मेदारी से कमेटी बनाई थी उसका रिजल्ट दे दें और मैं आपकी हुक्म के मुताबिक एप्लीकेशन कहेंगे मैं वो देता हूँ, ठीक है। रिटर्न लिख के सवाल आना है मैं वो देता हूँ, ठीक है। या जुबानी बात कर रही है तो आप टाइम बना दें, आप बीच में बैठे होंगे मिनिस्टर साहब और मैं बैठ के मैं साबित करूंगा। हम कल बैठ जाते हैं मिनिस्टर साहब आप और मैं जी। ठीक है। जैसे नदीम कुरैशी साहब भी फरमा रहे थे और भी कोई ऑनरेबल मेंबर यहाँ पर राय साहब बात कर रहे थे, तो हम बैठ जाते हैं ठीक है। मिनिस्टर साहब को साथ में बिठाते हैं। अगर इस तरह की करप्शन हो रही है तो हम मिनिस्टर साहब से पूछते हैं, वो इनको सजा देंगे। अगर सजा नहीं देंगे तो फिर हम जुर्मदार होंगे, ये हुकूमत जुर्मदार होगी। हो गया। मिनिस्टर साहब ठीक हो गया इस बात में। इजाज साहब सिर्फ एक सेकंड, मिनिस्टर साहब करनी है आपने बात कोई। स्पीकर गुजारिश ये है, जनाब स्पीकर गुजारिश ये है कि एक तो ये बात जो उन्होंने की अपने तरीके अल्तवाई कार के हवाले से, उन्होंने ये नहीं कहा कि उसका जवाब नहीं आया। उन्होंने ये कहा है कि बकौल उनका, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं क्योंकि मल्टीपल होती हैं, उन्होंने ये कहा जी कि उस वक्त ये कहा गया था कि वो सील हुई हैं, उसके बाद उनका ये कहना कि उसके बाद खोल दी गई। अब वो मैं चेक कर लेता हूँ बाद में कि खोली गई है कि नहीं खोली गई। देखें सुथरा पंजाब का ये जो फैसलाबाद वाला केस है, ये केस ये मेरे भाई फैसलाबाद के रहने वाले हैं। आज से पहले इन्होंने नहीं बोला, हमने खुद पकड़ा है, ठीक हमने खुद पकड़ के उसके ऊपर इंक्वायरी करके उसको पब्लिक किया। ठीक है। या नहीं, जो नहीं, चीज़ें- नदीम नहीं, कुरैशी साहब, स्पेसिफिक चीज हो, बात सुनने नहीं, देना, वो तो बात आप आपने मिनिस्टर तो- साहब को बात कर रहे हैं। मिनिस्टर साहब ये को बात आपने खुद करने पकड़ के उसके ऊपर दें एक्शन लिया है। इल्जाम तो आप सब पे लगा दे बेशक। यार, मिनिस्टर साहब को बात करने। अब आपकी बात सुनी है ना मिनिस्टर साहब ने। जनाब स्पीकर, अब वो जैसे भी मैंने सुनने कहा देना। हमने तो हर तरफ चीज़ों को ट्रांसपेरेंट तरीके से जहाँ पे भी कोई मसला निकलता है उसके ऊपर हम सख्त एक्शन करते हैं। ठीक जो है। ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कोई ऐसी चीज़ हुई उसके ऊपर सख्त एक्शन लिया जाएगा। जी एक तो फैसलाबाद का तो ये मान रहे हैं कि 1 अरब से ज़्यादा है, और दूसरा जनाब ये मीडिया की रिपोर्ट है कि बहावलपुर में 10 करोड़ 80 लाख रुपए की ओवर पेमेंटिंग हुई है सुथरा पंजाब में। आगे चलें सर, मुल्तान में हुई हैं सर 24 करोड़ 80 लाख की ज़्यादा अदायगियाँ हुई हैं, मीडिया की रिपोर्ट। अगला चलें सर, साहिवाल के अंदर 41 करोड़ की ओवर पेमेंटें हुई हैं। सर ये सारी मीडिया की रिपोर्ट है सुथरा पंजाब में। ये 3-4 जिले में गिनवा दिए, ये रिकॉर्ड है मेरे पास सर। चले और मीडिया आप की कह रहे हैं रिपोर्ट कि को सुथरा आप पंजाब शेयर में करें मिनिस्टर साहब के साथ, वो उसका हल निकालेंगे, उसका हल निकालेंगे। ले आए सबूत ले आए, मैं आपको मैंने तो कहा है ये सबूत ले आए, मिनिस्टर साहब खड़े हैं। जब स्पीकर देखें मीडिया रिपोर्ट्स हो सकती हैं, देखें मुझे मौका देना बात चाहता हूं करने आप। दें, मिनिस्टर साहब को बात करने दें। देखें मीडिया रिपोर्ट्स हो सकती हैं, हमने बकायदा चीज़ों के, जैसे मैंने कहा कि जब अथॉरिटी बनी है हमने एक एक चीज़ चेक की है, जहां इशू निकला है हम उसके ऊपर एक्शन लिया उसके ऊपर। जी ठीक तो है। ये ऑलरेडी हम इस पर कर चुके होंगे। जी नेक्स्ट। नाज़रीन, आपने पंजाब असम्बली में तहरीके इंसाफ के रुकने असम्बली नज़ीर सादक डोगर की धुआंधार तकरीर सुनी। नज़ीर सादक डोगर ने एक पुरजोश खिताब करते हुए सुथरा पंजाब मनसूबे और सरकारी अखराजात से मुतल्लिक़ 3 सवालात उठा दिए। अपनी तकरीर में उन्होंने दावा किया कि मनसूबे में माली बेज़ाब्तियाँ की इतलात सामने आ रही हैं और हुकूमत को इन मामलात पर वाज़ेह जवाब जो है वो देना होगा, क्योंकि ये अवाम के टैक्स का पैसा है और ये इसका ज़िया हो रहा है, इसके अंदर दो नंबरियाँ हो रही हैं। खिताब के दौरान नज़ीर सादक डोगर ने कहा कि अगर वाकई किसी भी मनसूबे में करप्शन हुई है तो ज़िम्मेदार अफराद के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने फैसलाबाद और बावलपुर से मुतल्लिक़ बाज़ रिपोर्ट्स और इल्ज़ामात का हवाला देते हुए मुतालबा किया कि इन मामलात की मुकम्मल शफाफ और गैर जानबदाराना तहकीकात कराई जानी चाहिए ताकि हकीकत आवाम के सामने आ सके, आवाम के जो टैक्स का पैसा है उसका जो ज़िया है वो ना हो। उन्होंने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि आवाम के टैक्स का हर एक रुपया जो है वो कौम की, इस हुकूमत की इमानत है और इसमें शफाफियत होनी चाहिए। इनके खिताब के दौरान ईवान में हुकूमती और अपोजिशन अरकान के दरमियान गर्मा गर्मी भी, जुमलों का मुकाबला भी देखने में आया, जिससे इजलास का माहौल खासा गर्म हो गया। और ये बात काबिल ज़िक्र तकरीर में की गई कि माली बेज़ाब्तियों के हवाले से दावे सियासी मौक़िफ़ के तौर पर पेश किए गए जिन पर मुतल्लिका इदारों या अदालतों की जानिब से हतमी फ़ैसला आना बाकी हो सकता है। नाज़रीन, आप नज़ीर सादक डोगर की आज की इस धुआंधार तकरीर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।